कार्य इसका कराएंगे, देखिए भी थोड़ा सा सजा देंगे। She is just come from Calcutta, direct woman, and she is also for Indian people. उसका भी लाइब्रेरी है, कोलाब्रेशन। इन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस दार्जिलिङ महाशयलाई सम्मिलित रूपमा यस चेकपोस्टको उद्घाटन गरिदिन भनी विनम्र निवेदन टक्राउँदछु। Respected IG North Bengal sir, respected DIG Darjeeling Range madam, respected dignitaries, my colleagues. I welcome you all at the inaugural program of Darjeeling District Police. I will proceed with a PowerPoint presentation. Bhanubhakta Acharya Library and Study Center. To promote the cause of aspiring students appearing for UPSC Civil Services Examination, WBCS Examination, Railway Board Exam and Bank Examination, Darjeeling District Police has come up with a library and a study center. Here the library is furnished with all sorts of book required to study the study for the examination. We have separate sitting arrangements arranged in form of cubicles so that students can sit and study without disturbance. We have enough space and arrangement for group discussions. We are providing students with free Wi-Fi so that they can serve internet content which are educational in purpose. We have also talked with Satyanath Tagore Civil Service Study Center. They have assured us to provide video content for educational purpose. Besides this, we have also talked with some WBCS officers who are providing free online courses. They have assured us help. We are also keeping dailies and important magazines which keep aspirants abreast with the current affairs required for the examination. We have kept LED TV and laptops so that we can run the online content as well as the video educational contents. These are a few photographs of Bhanubhakta Acharya Library and Study Center. This is the room made for group discussion. This is the sitting arrangement formed in form of cubicles. This is the library. Next in the list we have Helen Lecture Baby Daycare Center for working lady police personnel of Darjeeling District Police. Working lady police personnel can keep their baby while proceeding in their duty during the daytime. The rooms are decorated with painted cartoons so that they can find it attractive. It is furnished with diverse toys with which children can play with. We have also kept beds, blankets, as well as room heaters to make the room comfortable for the children. These are few visuals of the daycare center. With your permission, sir. Good afternoon, all of you. Respected IG sir, DP Singh sir, respected DIG madam, Soumit Lecture madam, my colleagues here, Additional Speaker Xiong, Additional State Quarter, ASP Town and all the ICs and OCs present here. Respected dignitaries, principals from various colleges and schools, students from Red Cross Society who are preparing for UPSC and Civil Service Examination at the backside, other dignitaries present here, and my dear reporters. So we have continuing our efforts for improving the things in the Darjeeling area. We have last 1 month we inaugurated so many projects. Again, these are the continuation of the all the projects which are continuing. Tista check post, you know, 2 months back there was a double murder happened in Tista area nearby the forest, where the parents were murdered by the addicts. Basically, three were the culprits, in which their son was also involved. They were drug addict. This is a menace we are facing in Darjeeling. So many crimes happened, but after
coming of these things. We are behind the drugs cartels, may it be at the Sevok or the Tista city. That's why we have created this Tista checkpost nearby the Triveni, where so many tourists from outside, they are visiting there for camping, river rafting, and the drug joints were there. So we cracked on them, so many cases started, and that's why we have created this Tista checkpost to control the things in that area. People were demanding 3 months back about this, so we have created this Tista checkpost. The football and the volleyball, these are our community programs which are continuing. Since last year we have Khel Utsav. In various sports, we are organizing various sports in various areas. Vikram and like-minded people, they are also helping us. Let it be like marathon, volleyball, badminton, every sports we are promoting, and that's why this football and the volleyball is the continuation of that. We are keeping the young minds in constructive activities so that the things in the area remains in control. Creche, that has been again the effort of and with the initiation and the guidance of IG sir in the North Bengal, all the districts we have the creche for the working women, working constables, up to the officer level women who are working. So their children's, we are thinking of taking care of them while they are working. That's why this creche are in each district. Last month, Kalimpong and other districts, they have also inaugurated this creche. This Bhanubhakt competitive center, again, there is a Satyendranath Thakur competitive exam center at the Kolkata, which is functioning since 1 year. Again, that is a continuation of that project here in Darjeeling. Here the students are very bright and very studious. So guiding them, 2 years back we have started the Tenzing Norge e-Prashikshan, in which we are giving, under which there are various WhatsApp group in each police station area, catering about 5,500 young minds, and which are who wants to be selected in any job, likewise in WBCS, UPSC, banks, related to army. So we are, since 1.5 years, we are giving guidance to these young minds also. Employment opportunities, whatever comes with us, we are giving in that group. So they are getting the opportunities and getting so many students they have already selected in various examination and the job post. So this Bhanubhakt, the app made name for the competitive examination center of the respected Bhanubhakt, where all the facilities will be made available. There is a Red Cross study center also. We will have a collaboration with that also. And the advantage of Bhanubhakt competitive examination center is that various officers from all over India, they are visiting here, Darjeeling, for tourist purpose. So we can get hold of them and we can ask them to guide our students in hill area. So they will be benefited by the judges who are visiting here, the IS officers, IPS officers, WBCS officers, bank, army officers. We are having Jalapar, Nebom, army officers. They can guide our students so that our bright students will be getting selected in various posts, and again they will brighten the Gorkha name all over the India and the world, I think. So this is the main thing for starting this study center, and Tiger Hill assistance, which is continuing since, but tourist guidance is most required, so that will be given in that center. SP Darjeeling अनि उहाँको टिमलाई अनेक बधाई दिन चाहन्छु कि यो सबै आज जति पनि उहाँले इनिसिएटिभ लिनुभयो, लाइक उहाँले अलरेडी इलाबोरेट वेमा तपाईहरुलाई बुझाइदिन सक्नु भएको छ। टाइगर हिल एसिस्टेन्स बुथ, नानीहरुको लागि क्रेच सेन्टर, लाइक स्पेशली फर
वर्किङ पुलिस वुमन अनि टिस्टा सिटीको अनि कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन स्टडी सेन्टर। त यो सबै हामीलाई पहिल्यैदेखि नै धेरै दिनदेखि नै हामीलाई यो एकदमै जरुरी नै थियो, किनभने हामी पनि यहीँबाट म पनि दार्जिलिङबाटै माने एक्जामहरू बसेको। त्यति बेला हाम्रो टाइममा यो सब थिएन। इभन एज अ वर्किङ मदर यो प्रेस सेन्टर जुन चाहिँ छ हाम्रो वुमेन पुलिसहरूको लागि, यसको लागि म आइजी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँकै इनिसिएटिभले गर्दा नै अहिले सबै समस्त जति पनि नर्थ बेङ्गलको डिस्ट्रिक्टहरूमा छ, थानाहरूमा छ, यो हाम्रो वुमेन पुलिस फोर्सको नानीहरूको लागि प्रेस सेन्टर सुरु गरेको छ। किनभने यसले गर्दाखेरि मेरो पनि पास्टमा एकदमै नराम्रो एक्सपिरियन्स थियो। म कसैलाई डर त देखाउनु चाहदिनँ, हाम्रो जति पनि यहाँ आमाहरू हुनुहुन्छ, तर पनि मेरै नानीलाई सँग पनि त्यो माने इन्सिडेन्ट भएकोले गर्दा ऊ पनि 20 डेज आइसियुमा बसेको थियो। अनि यसको लागि चाहिँ आइजी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म आशा गर्दछु हाम्रो यहाँका जति पनि पहाडका नानीहरू हुनुहुन्छ जसले एक्जामिनेसनहरूको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूले माने यो फेसिलिटीको चाहिँ पुरा माने हेल्प लिएर राम्रोसँग, जस्तो एसपीले अलरेडी भनिसक्नुभयो हाम्रो दार्जिलिङ राम्रो दार्जिलिङ बनाउनुहुन्छ र दार्जिलिङको नाममा एउटा गौरव ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई धेरै धेरै आशा छ। अनि भनिन्छ गुड थिङ्स अलवेज टेक टाइम एन्ड बेस्ट एफर्ट्स आर नेभर वेस्टेड। त म आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैले नै यसमा राम्ररी यो फेसिलिटीहरू लिएर राम्रो गरेर हाम्रो दार्जिलिङलाई राम्रो बनाउनु। आपके एसपी साहब ने इंग्लिश में बोला, इन्होंने नेपाली में बोला, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्पीच हिंदी में रखता हूँ। हमारे सारे के सारे दार्जिलिंग के लोग हिंदी बहुत अच्छे से समझते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से जब से संतोष के प्रोग्राम्स में मैं आता रहा हूँ, मैंने देखा है कि पुलिस वेलफेयर के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और ख़ासकर जो हम लोगों का हमारे पुलिस फोर्स में बहुत एक लंबा जो ड्यू था, हमारी लेडी पुलिस पर्सनल्स आईजी नॉर्थ बंगाल के रूप में मेरे लिए सबसे जो कठिन चुनौती होती है, जब हमारे पुलिस फोर्स में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की इतनी ज़्यादा लेडी कांस्टेबल्स हैं, और जब वो मेरे पास आती हैं ऑर्डरली पार्ट 2 में और जब बोलती हैं सर मुझे 4 साल 5 साल में सर मुझे दार्जिलिंग पोस्टिंग कर दीजिए, और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी पोस्टेड हैं, 150 के करीब एडिशनल पोस्टिंग हो रखी है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है उनको मोटिवेट करने में कि बेटा आप जहाँ हैं वहाँ पे आप 1 साल और करिए, उसके बाद हम आपको ले आएंगे। लेकिन हर लेडी कांस्टेबल की एक ही प्रॉब्लम होती है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरी माँ के पास है, मेरी सासू अम्मा के पास है। तो हम लोगों ने बहुत दिनों से सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेजर है जो हर जिले में, मैं एक्चुअली दिल से अपने सारे एसपी खासकर संतोष निम्बालकर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस फील्ड में एक अच्छी पहल की है, और हमारी लेडी कांस्टेबल्स, हमारी लेडी ऑफिसर्स के प्रति ये बहुत बड़ा योगदान है जो आप लोगों ने किया है। जो हम लोग अलग अलग जगहों पे जो चेक पोस्ट खुले हैं, चाहे टाइगर हिल्स में हो या त्रिवेणी में हो, बहुत पहले से ये ड्यू था और ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन एनवायरनमेंट डे का एक मैं विजुअल देख रहा था। दार्जिलिंग से मेरा जुड़ाव आज से काफ़ी पुराना है, मोर देन 38 ईयर्स। यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा बच्चा जब था तब HMI दार्जिलिंग में एडवेंचर कोर्स करने आया था, तब का दार्जिलिंग। और ऑलमोस्ट हर एक डिकेड के बाद जब मैं दार्जिलिंग को देखता हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपने जो प्रिंसिपल सर लोग हैं, टीचर्स हैं, सबसे मैं निवेदन करूँगा कि बच्चों को उनके डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को अवेयर करना। हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, विक्रम भाई यहाँ पे हैं, यहाँ के बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा। मुझे नहीं पता, हर साल सारे लोग कहते हैं कि मैंने 1000 पेड़ लगाए, कोई कहता है मैं 2000 पेड़ लगाया। मैं तो कहता हूँ कि जो आपने ज़्यादा 1000-2000 पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, आप हर साल एक पेड़ लगाइए। और अगर आप 3 साल 4 साल पहले भी कोई पेड़ लगाए हैं, तो जब आप एक पेड़ लगाते हैं तो उसकी भी आप देख लीजिए कि हर बच्चे की हम परवरिश करते हैं, वैसे पौधों की भी परवरिश करने की जरूरत पड़ती है। तो हम इन्वायरमेंट को सच में अगर बचाना चाहते हैं तो हमें भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और सिर्फ पौधे लगाने से नहीं होगा, उसके अपकीप पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारे जो विक्रम जी जैसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मैं उनसे दार्जिलिंग को, पहाड़ को ठीक रखने के लिए मैं अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी यहाँ पर, खासकर
पौधों को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, हम किस तरीके से डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को अपने प्रोटेक्ट करके रख सकें, जो हमारी सिर्फ आज के लिए नहीं, आज से 40 साल पहले जो दार्जिलिंग को आपने देखा है, आने वाले 40 सालों में दार्जिलिंग कैसा होना चाहिए, उसका एक विजन बहुत जरूरी है। संतोष ने बहुत इनिशिएटिव लेके के नाम पे इन्होंने लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया। मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि दार्जिलिंग की जो हमारी हिस्टोरिकली अगर हम देखें अंग्रेजों के ज़माने से, शायद ब्रिटिश ओल्ड टाइम से जो जितने अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे दार्जिलिंग में हैं, शायद कहीं भी नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी यूपीएससी लिस्ट को देखें तो बहुत सालों में, 2 साल 3 साल या 4 सालों में एक ऑफिसर हमारे इस दार्जिलिंग से आता है। जबकि अगर सही मायने में देखें, अगर मैं अपनी एजुकेशन को अगर इवैल्यूएट करूं कि हमारा बचपन कहाँ बीता, हमने अपना 12th कहाँ से किया, हमने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया, और जब मैं दार्जिलिंग में आता हूँ, दार्जिलिंग के जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन इतने अच्छे स्कूल से होती है, तो आखिर ये ठहराव या भटकाव कहाँ पे है, शायद उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। और खासकर इस जगह पे अधिकतर लोग हमारी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में भी आते हैं, तो शायद यहाँ के बच्चों का, लड़के और लड़कियों का सिविल सर्विसेज के टॉप लेवल में हिट करना और बहुत आसान होगा। उसके लिए सिर्फ जरूरी है कि जो हमारे राइट साइड में जो हमारे सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, जो हमें गाइड करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाइड करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन प्रोग्राम। मेरे सामने मेरे यंग ऑफिसर्स में हमीश में जितने बच्चे हैं, शायद इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोगों में वो कमी रह गई है कि शायद हम वो रोल मॉडल नहीं बन पा रहे हैं, जिसको देख के वो बच्चे इंस्पायर्ड हो कि हाँ हमें शायद वो बनना है। कहीं ना कहीं कमी है। मैं जब अपने ऑफिसेज में, जब अपने लेडी कांस्टेबल्स या कांस्टेबल से जब इंटरेक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ उनका इंटेलेक्ट लेवल कितना हाई है, बट जब उनसे बातें करता हूँ तो शायद दे फील सेटिस्फाइड कि सर कांस्टेबल है, बहुत अच्छा है सर, आराम की जिंदगी है, सब कुछ है। शायद कहीं ना कहीं एस्पिरेशन लेवल का अभाव है, कमी है। उस एस्पिरेशन लेवल को विक्रम भाई हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। शायद चीज़ें एक दिन में नहीं बदलती हैं, लेकिन इनिशिएटिव्स अगर हम लेना चालू करें तो हो सकता है आज से 5 साल बाद हमको रिजल्ट देखने को मिले दार्जिलिंग में, और निश्चित रूप से ये रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारे एसपी साहब ने लिया है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, विगत कुछ दिनों में हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम बहुत ज़्यादा कंसर्न है नॉट ओनली अबाउट दिस, पूरे बंगाल के बारे में, स्पेशली यूथ के बारे में। और जब भी हम लोग कोई एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ उनके साथ जाते हैं, हमारी सोच से बहुत ज़्यादा मदद उनकी तरफ से आती है। वो खुद चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सके। और मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बच्चे का जो बचपना है उसमें खेल कूद की एक बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। एक बच्चा अगर अपने छोटे इस वक्त में कोई भी गेम खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छा टीम मैन होता है। क्योंकि जब वो टीम गेम खेलता है तो वो इंडिविजुअल एक्सेलेंस की चीज़ नहीं होती है, उसमें आपको 10-11 लोगों को साथ में लेके चलना होता है, आपको एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बैलेंस करना होता है, तभी एक अच्छी टीम बनती है। तो शायद हम लोगों को भी, हम लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप लोगों को भी टीम गेम्स जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा कराना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं, पहाड़ों में विगत एक दशक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आई है नशाखोरी की तरफ। हमारी पूरी पुलिस की टीम कमिटेड है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रही है इस फील्ड में। मुझे लगता है हमारे जो सोसाइटी के जो लीडर्स हैं, जो शायद हमें एक विजन प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस क्षेत्र में आए और शायद एक साथ मिलकर हम काम करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम मेन स्ट्रीम में ला सकें और वो नशाखोरी की तरफ न जाएं। उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि अंचल अंचल में हमारी जितनी भी समष्टि है उसमें खेल कूद का जो कल्चर है उसको हम रिवाइव कर सकें। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने विगत कुछ दिनों में जो अच्छे कार्य किए हैं पुलिस के मान सम्मान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यार आज हमारे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संतोष निम्बलकर सर के इनिशिएटिव में काफ़ी सारे इनॉग्रेशंस हुए हैं आज। तो पहला एक लाइब्रेरी इनॉग्रेट किया गया था, भानु भक्त आचार्य लाइब्रेरी, जिसमें जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं दे कैन कम एंड दे कैन स्टडी। हम कोशिश कर रहे हैं उसमें एक स्टडी सेंटर बनाने के लिए, जो कोलकाता में एक हमारा एक सत्येंद्र नाथ का ये इंस्टीट्यूट है
उसे सिविल सर्विस का ट्रेनिंग वगैरह के लिए। फिर आपका एक हमारे वुमेन पर्सनल्स के लिए एक बेबी केयर सेंटर बनाया गया है, हेलेन लेप्चा बेबी केयर सेंटर। ये 2 यहाँ पे सदर में इनॉग्रेशन हुआ है। फिर एक टाइगर हिल असिस्टेंस बूथ जो पहले से था उसको हमने रेनोवेट करके अच्छे करके और थोड़ा टूरिस्ट के लिए ताकि हेल्प हो जाए, कहाँ से क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उस असिस्टेंस से प्रोवाइड किया है। त्रिवेणी में कैंप बनाया है क्योंकि त्रिवेणी बहुत ही आउटलाइन एरिया पड़ रहा था, तो थोड़ा वहाँ के त्रिवेणी के जो लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर काइंडली यहाँ पे एक आउटपोस्ट बना दिया जाए, तो उसके लिए हमने वहाँ पे एक चेक पोस्ट बना दिया है। ये हमारे कुछ इनिशिएटिव्स थे। आज फिर वॉलीबॉल एंड फुटबॉल जो कि हमारा हर साल का दार्जिलिंग पुलिस का कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव है। थोड़ी देर बाद फुटबॉल का आज फाइनल है। जो फाइनल की टीम्स हैं उसमें से विनर्स जो होगा आईजी सर एंड डीआईजी मैडम जो यहाँ पे ग्रेस द ओकेजन, वो उनको क्या बोलते हैं, फेलिसिटेट करते हैं। जो ये बेबी केयर सेंटर बनाया है आप लोगों ने वुमेन पीएस में, तो ये क्या यहाँ पे सिर्फ स्टाफ का बच्चे को या ऑलरेडी या बाकी अभी प्रिलिमिनरी बेसिस पे तो स्टाफ के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे एज एंड व्हेन अगर अदर और किसी को रिक्वायरमेंट होता है तो दे कैन वेरी वेल कम टू द वुमेन ओसी। वुमेन पीएस जो हमारी ओसी है रोहिता मैडम, उनके अंडर है, तो वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि हमारे फोर्स के लिए कुछ था नहीं वुमेन पर्सनल्स के लिए, तो जैसे अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो कोई जरूर मतलब कोई इशू नहीं है, सीधा वुमेन पीएस हमारी ओसी है उनसे मिल सकते हैं, एकदम अपना कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बता सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी का आज उद्घाटन किया आप लोगों ने, तो इसमें ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के स्टाफ के लिए ये लाइब्रेरी या पब्लिक के लिए? नहीं, ये तो ओपन टू ऑल है। ये तो बनाया ही इसीलिए गया था कि हम चाह रहे थे कि ये जो यहाँ के बच्चे हैं, जो स्टूडियस बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको हम मटेरियल प्रोवाइड कर दें। आप अगर अंदर देखे होंगे तो वहाँ पे बुक्स ऑलरेडी फर्निश्ड है। वो एक हमने सिटिंग एरिया बना दिया है, क्यूबिकल्स बना दिए हैं, तो ऑलरेडी ये ओपन टू पब्लिक है। इसमें हम अभी बैठ के थोड़ा बैठ के डिसाइड करेंगे कि सब्सक्रिप्शन बेसिस होगा या फ्री टू ऑल होगा अकॉर्डिंग टू द इनपुट। अगर बहुत ज्यादा इनपुट आ गया तो इतने बच्चे तो हम रख नहीं पाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो हम थोड़ा एकदम माइन्यूट कॉस्ट पे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे फिर उसको स्टार्ट कर देंगे। ये तो क्योंकि भानुभक्त यहाँ के एक रिवर्ड पर्सनालिटी हैं, तो ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो रिलेट कर पाए। ये तो लाइब्रेरी को हम केवल लाइब्रेरी नाम नहीं देना चाह रहे थे किसी एक ऐसे पर्सनालिटी के पीछे उनका नाम हो कि यार बच्चे आके देखें कि हाँ इन पे हमें इंस्पिरेशन मिले। जैसे आईजी सर ने हमें कहा था कि यहाँ पे एस्पिरेशंस की और इंस्पिरेशन की थोड़ी कमी है, जो कि हम अपनी तरफ से और पब्लिक सोसाइटी अपनी तरफ से है, तो हम थोड़ा बच्चों को मोटिवेट कर पाए। यहाँ पे इसीलिए हमने ऑलरेडी फर्निश लाइब्रेरी दी है कि बच्चे बस आए और पढ़ के बस बैठे। किस टाइप का ये बुक? इसमें आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी हो गया, WBCS हो गया, बैंक्स हो गया, कांस्टेबल हो गया, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन थे केवल उसी की बुक्स है। अभी फॉर्मेलिटीज अभी हम इसमें बैठ के प्लान डिसाइड करेंगे। आज इनॉग्रेशन हो गया, विद इन 1 और 2 डेज वो डिसाइड हो जाएगा एज पर जो भी एसपी दार्जिलिंग से डिसाइड करेंगे कि फ्री टू ऑल होगा या फिर सब्सक्रिप्शन बेसिस पे होगा, जैसे भी हमें इनपुट आता है। मतलब जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट इसमें दिखता है कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे आ गए हैं तो हमें सब्सक्रिप्शन ही करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब जैसे भी एसपी सर के ऊपर है कि जैसे भी वो डिसाइड करते हैं क्या क्या रहता है।